Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study extension education. So let's start the lecture and understand extension education. See, extension education is informal education which is provided to rural people, men, women, farmer, tenant farmer, school dropouts and householder through training and other educational facilities. Extension education is informal in nature because this education is not provided in any school, college or any university. Extension education is informal education and this education is provided according to need of the people and situation of the learner. So this education is provided according to need, utility, choices and situation of the learner, right? And it is फ्लेक्सिबल, इट इज़ वेरी 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 फ्लेक्सिबल, राइट? क्यों? क्योंकि यह जो एजुकेशन है इस एजुकेशन में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है, राइट? ताकि वो अपने लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व कर पाएँ, साथ ही साथ अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज कर पाएँ, राइट? सो सिंपली वी कैन से दैट एक्सटेंशन एजुकेशन इज मेथड ऑफ एजुकेटिंग एंड मेकिंग द पब्लिक एजुकेटेड एंड अवेयर, स्पेशली लिविंग इन रूरल एरियाज विच इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड, राइट? और इस एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से लोगों को उनकी नीड के आधार पर, यूटिलिटी के आधार पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, नॉलेज अवेलेबल कराया जाता है, राइट? वर्कशॉप्स जो हैं, वर्कशॉप्स के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है वो प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, राइट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे रूरल पीपल कनेक्ट हो पाएँ और वो साथ ही साथ अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी इंक्रीज कर पाए. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ, राइट, कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट, देन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन की जो प्रोसेस है we have studied in the previous lecture, right? In this lecture we will study the principles of extension education, right? So here 11 marker question may be asked in the examination. What are the principles of extension education, right? So this may be asked as a 11 marker question or 5 marker question may be asked, right? What is the principle of cultural differences of extension education, right? Or the question may be asked right, discuss the principle of practically for providing the extension education, right? या फिर हो सकता है कि 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. सो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट? So we will see principles of extension education. So there are more number of principles regarding extension education. The first is principle of voluntary organization, then principle of persuasion and motivation, principle of self-help, principle of interest and fundamental needs, principle of cultural differences, principle of flexibility, principle of satisfaction, principle of leadership and development, then principle of neutrality, principle of participation and cooperation, then principle of social change, then principle of learning by doing and principle of sustainable development, right? So these are the principles of the sustainable development. So these are the principles of extension education. Now we will see the principle one by one. The first is principles of voluntary organization. See, extension education is not imposed on a single person, right? ये जो extension education है, this is not imposed on a single person, right? It is flexible,
right? It is flexible, it is based on the needs and utility of a particular person. और साथ ही साथ ये वॉलेंटरी और वॉलेंटरी क्या होता है, ये वॉलेंटरी एजुकेशन होता है, राइट? इस एजुकेशन में लोगों को उनकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज है या जो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, उस टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस को फुलफिल करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है. और स्पेशली रूरल पीपल आर मोटिवेटेड, राइट? रूरल पीपल आर मोटिवेटेड टू लर्न ऑन देयर ओन, राइट? तो इसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है और लोगों को, राइट, लोगों को नॉलेज, स्किल्स, राइट, या एटीट्यूड, साथ ही साथ जो बिहेवियर है, राइट, उसमें चेंज लाने के लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि उनकी स्किल में चेंज हो सके, एटीट्यूड चेंज हो सके और उनका बिहेवियर चेंज हो सके, साथ ही साथ उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी चेंज हो सके. और जब लोगों के बिहेवियर में या एटीट्यूड में चेंज होगा, वह सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट होंगे. सो डेफिनेटली वो वॉलेंटरी ही, राइट, या वॉलेंटरीली ही इस एक्सटेंशन एजुकेशन को एक्वायर करेंगे. सेकेंड एज प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल नीड्स एंड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा. सी फॉर द रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जो फंडामेंटल नीड्स हैं वो फुलफिल होना जरूरी है. और अगर लोगों की जो फंडामेंटल नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी, सो डेफिनेटली पीपल विल टेक इंटरेस्ट टू एक्वायर द एक्सटेंशन एजुकेशन. साथ ही साथ लाइफ जो है सक्सेसफुल तभी होगी जब लोग उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे. तो जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और जब लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और उनकी जो बेसिक नीड्स जो है फुलफिल हो जाएंगी, देन द लाइफ ऑफ पीपल बिकम सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड. और लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सटेंशन एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? चाहे एग्रीकल्चरल वर्क हो या रूरल इंडस्ट्रीज हो या बिजनेसमैन हो, राइट? इनके रिगार्डिंग जो भी उनकी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? जो न्यू टेक्नोलॉजी है, राइट, उसके बारे में अवेयर किया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, राइट? और इससे क्या होता है, राइट? इससे जो है जो विलेजर्स होते हैं वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर लेते हैं. साथ ही साथ जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट, उनको अलग अलग तरीके के, राइट, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, राइट? तो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट नीड्स होंगे और डिफरेंट क्या होंगे, इंटरेस्ट होंगे. Therefore, there may not be suitable for everyone a particular, right? एक पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग सेशन है या एक पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए समान नहीं हो सकती है. इसीलिए डिफरेंट सूटेबल प्रोग्राम्स, राइट, और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड ताकि जो डिफरेंट लोग हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट और उनकी जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके. थर्ड हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. सी इंडिया हैज मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, कल्चरल कस्टम्स, राइट, और फूड हैबिट्स. देयरफॉर जो पीपल हैं उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, उनकी नीड्स भी अलग अलग होती हैं और साथ ही उनकी चॉइसेस भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. और इन सब की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वन पर्टिकुलर प्रोग्राम इज नॉट इनफ, राइट? देयरफॉर जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, राइट, कीपिंग इन द माइंड द कल्चरल डिफरेंसेस जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं. एंड टू मीट द डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट नीड्स ऑफ द पीपल, डिफरेंट एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है. देन प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा. सी द एक्सटेंशन एजुकेशन इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर फार्मर्स, right, men, women, school dropouts who are engaged actually in agriculture or in some other activity,
और अगर उन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उन लोगों को एक्सटेंशन एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, सो डेफिनेटली वो जिन भी एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं वहाँ से टाइम निकाल कर वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक्सटेंशन एजुकेशन को फ्लेक्सिबल रखा जाता है ताकि लोगों को उनके अवेलेबल टाइम पीरियड में, राइट, उनकी नीड और उनकी चॉइसेस के आधार पर उनको डेफिनेट जो प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको एक्सटेंशन जो है प्रोवाइड कराया जा सके, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज इम्पार्टेड यूजिंग रिसोर्सेज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट विच द लर्नर्स लिव। तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, राइट, उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट टाइप के जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम या जो है सेशंस जो है उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड क्या हो जाएगा, कोऑपरेशन हो जाएगा, राइट। सी पार्टिसिपेशन विल ट्रस्ट बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर एंड क्या हो जाएगा, विलेजर्स हो जाएगा। अब जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय एक्सटेंशन वर्कर, और इसीलिए एक्सटेंशन वर्कर और विलेजर में पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। पार्टिसिपेशन होगा तो उससे एक बिलीफ बिल्ड होगा, और बिलीफ बिल्ड होगा तो जो एक्सटेंशन वर्कर की जो मेथड्स हैं या जो भी नॉलेज एक्सटेंशन वर्कर प्रोवाइड कराना चाहता है, लोग उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। इसीलिए पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन एक्सटेंशन वर्कर एंड विलेजर्स और जो लर्नर है उनके बीच में होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तभी जाकर जो है स्कीम्स जो है वो सफल हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जननी सुरक्षा योजना, पब्लिक हेल्थ, राइट, एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फिर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हो जाएंगी, राइट, इनकम ट्रांसफ़र ETC, राइट। इन सब स्कीम्स को सक्सेसफुल होने में, राइट, जो म्यूचुअल पार्टिसिपेशन है उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। इसीलिए एक्सटेंशन एजुकेशन में इस तरीके से लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है ताकि पब्लिक और एक्सटेंशन वर्कर के बीच में पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन इंक्रीज हो, सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कुड बी फुलफिल्ड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल चेंज, राइट। अगर हम देखें सो एक्सटेंशन एजुकेशन इज रिलेटेड विद द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ रूरल पीपल, क्योंकि रूरल पीपल जो कि, राइट, रूरल पीपल जिनके पास में नॉलेज नहीं होता है, राइट, एजुकेशन नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं होता है, वो खुद से, राइट, वो खुद से जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, या दे डोंट इवन ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एट अ डोमेस्टिक लेवल, राइट। जो भी कार्य होता है, उसकी जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो एक तरीके से इसके लिए ज़रूरी है कि उनके एटीट्यूड में चेंज लाया जाए और उनको जो है पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसमें, या जो लोगों की थॉट प्रोसेस है उसमें चेंज लाया जाए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो इस एक्सटेंशन प्रोग्राम की वजह से पीपल आर बीइंग अवेयर्ड, राइट, थ्रू सेशंस और थ्रू एक्सटेंशन एजुकेशन, और इसकी वजह से जब लोग अवेयर हो रहे हैं तो वो एक्सटेंशन एजुकेशन ले रहे हैं, और इसकी वजह से सोसाइटी में चेंज भी आ रहा है। पीपल अब अपनी इश्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसके लिए जो भी प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए जाते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। देन सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, प्रैग्मैटिज्म हो जाएगा। See, actually extension education is vocational education, और we can say that जो extension education होता है उसमें vocational training provide कराई जाती है, और ये क्या है, एक applied education है। इसीलिए जो कुछ भी एक्सटेंशन एजुकेशन में प्रोवाइड कराया जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से मशीनों को रन करना, मशीनों को रिपेयर करना, एग्रीकल्चर को न्यू मेथड से करना, अपग्रेडेड मेथड से करना, इरिगेशन को इम्प्रूव करना, राइट, किसी भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड वर्क को बेहतर तरीके से करना, और इससे लोगों की जो लाइफ है, रियल लाइफ क्या होती है, इफेक्ट होती है, राइट। तो इस तरीके से जब वो पूरी तरीके से इस एजुकेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं, राइट, इसीलिए जो प्रैग्मेटिज्म है उसको जो है फोकस किया जाता है,
राइट, और लोगों को जो एजुकेशन है, राइट, द एक्सटेंशन एजुकेशन को लोगों के लिए और भी जो है यूजफुल बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा। सो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सी, एक्सटेंशन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन नीड एंड यूटिलिटी, राइट। साथ ही साथ दिस एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, हाउस होल्ड एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, राइट। इसीलिए इसमें ऐसी मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग जो है नॉलेज को एक्वायर कर सकें और केपेबल हो जाएं जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इसीलिए जो है लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अप्रोच जो है फॉलो किया जाता है। उदाहरण के लिए इफ़ फार्मर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन ऑफ रनिंग मशीन्स, रिपेयरिंग मशीन्स, राइट, यूजिंग मशीन्स, राइट, यूजिंग डिफरेंट या यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए जो है उनको डेमोन्स्ट्रेट जो है दिया जाता है। साथ ही साथ थ्योरेटिकल एजुकेशन के जगह पर उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है, राइट। फार्मर्स आर टॉट हाउ टू मशीन्स आर रिपेयर्ड, हाउ टू मशीन्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, राइट। या जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, राइट। जैसे डोमेस्टिक लेवल पर बेबीज के लिए जो है न्यूट्रियस फूड कैसे तैयार किया जाता है। सो इट इज टॉट बाय प्रिपेयरिंग न्यूट्रियस फूड यूजिंग द डोमेस्टिक मटेरियल, ताकि जो डोमेस्टिक वाइफ्स होती हैं वो आसानी से न्यूट्रियस फूड को तैयार करना सीख जाती हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, सेल्फ हेल्प हो जाएगा। सी, देयर इज अ कोटेशन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, राइट, विच मीन्स दैट लोगों को खुद के, राइट, फॉर द सेल्फ हेल्प, द पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर सेल्फ हेल्प, अर्थात लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से, एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से उनको कैपेबल बनाया जाता है, राइट, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकें और वो एक तरीके से जो इंडिविजुअल हेल्प है, राइट, उस पर जो है फोकस कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, राइट। इट इज फोकस्ड इन एक्सटेंशन एजुकेशन दैट the needs of rural people could be fulfilled, क्योंकि अगर नीड्स जो है फुलफिल नहीं होंगी या प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी तो डेफिनेटली एक्सटेंशन एजुकेशन से जो लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। इसीलिए टू सेटिस्फाई द रूरल पीपल, राइट, the needs and problems of rural people are solved so that they got maximum satisfaction, राइट। और इसके लिए उनकी नीड्स को अच्छे से स्टडी किया जाता है, उनको सॉल्व करने के लिए जो भी न्यू मेथड्स होते हैं, न्यू अप्रोचेस होते हैं, उनके माध्यम से लोगों को ट्रेन किया जाता है, राइट। उनके इंटरेस्ट को जो है बनाए रखा जाता है, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाता है, ताकि इफेक्टिव और जो रिजल्ट बेस्ड ट्रेनिंग है वो उपलब्ध कराई जाती है ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। द पीपल ऑफ रूरल प्लेसेस, पीपल फ्रॉम रूरल प्लेसेस आर टॉट द लीडरशिप क्वालिटीज, राइट, और उनके माइंड में जो है लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट किया जाता है, राइट, ताकि वहाँ के लोग उनकी जो डोमेस्टिक नीड है या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आगे निकल कर आएँ, राइट। इफ़ दे बिकम द लीडर ऑफ देयर प्लेसेस देन डेफिनेटली जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं या लोकल नीड्स हैं, राइट, उनको पब्लिक कोऑपरेशन के माध्यम से जो फुलफिल किया जाता है, राइट। और इसके साथ ही जो लोकल लीडर्स होते हैं वो सर्च भी किए जाते हैं, बिकॉज लोकल लीडरशिप इज ऑलवेज सपोर्ट टू द एक्सटेंशन वर्कर। तो एक्सटेंशन वर्कर जो है लोकल लीडरशिप के माध्यम से अपनी जो पॉलिसी है या अपने जो प्रोग्राम है उसको आसानी से क्या कर सकता है, लोगों तक जो है पहुंचा सकता है। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण होता है कि अगर लीडरशिप डेवलप हो जाएगी तो एक्सटेंशन एजुकेशन को
और एफिशिएंट वे में जो है लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, बिकॉज पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज हैव मोर फेथ इन देयर लोकल लीडर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। सी इंडिया हैज़ वेरी वाइड कल्चर, राइट। इंडिया में देयर आर डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, कम्युनिटी, राइट। और इसकी वजह से लोगों की नीड्स भी अलग होती हैं, लोगों का थिंकिंग प्रोसेस भी अलग होती है, राइट। तो लोगों की नीड्स अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, राइट। इसीलिए सभी लोगों को, एक तो सभी लोगों को उनकी नीड्स के अनुसार एक्सटेंशन एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरी चीज़, सभी लोगों की जो नीड्स हैं और प्रॉब्लम को फोकस किया जाता है, राइट। सो एक्सटेंशन वर्क इज प्रोवाइडेड इम्पार्शियली, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट, एक कम्युनिटी को जो है फोकस किया जा रहा है और द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ अदर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन जो है उसको इग्नोर किया जाता है। इसलिए इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन, राइट। इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ऑल रिलीजन, सेक्ट्स, कास्ट, कम्युनिटी, राइट। और अगर न्यूट्रलिटी को फोकस किया जाएगा तो उससे सोसाइटी में कोऑपरेशन भी इंक्रीज होगा और कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगी, कमी आएगी। इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है और जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी है इसको जो है फोकस किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वालिटी हो जाएगा। और फिर वही बात, राइट, कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन होते हैं, डिफरेंट कास्ट होती हैं, साथ ही साथ हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसमें हायरार्की भी होती है, राइट। तो कास्टिज्म की प्रॉब्लम भी होती है, राइट। और ऐसी सिचुएशन में अगर सम ग्रुप ऑफ पीपल को अगर फोकस किया जाएगा और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, सो डेफिनेटली इससे जो अदर सेक्ट है, कम्युनिटी है, अदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन जो है वो उससे क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाएंगे, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है इसको फोकस किया जाता है ताकि जो रूरल पीपल है, राइट, रूरल पीपल हैं उनको समान तरीके से एक्सटेंशन एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इक्वलिटी, राइट। और अगर इसके साथ ही जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसको भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो कुल मिलाकर सभी व्यक्तियों को, राइट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी प्रेफरेंस सभी लोगों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको एक्सटेंशन एजुकेशन जो है प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रेंड एक्सपर्ट हो जाएगा। सो एक्सटेंशन वर्कर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द विलेजर्स एंड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, राइट। रूरल एरियाज में जब कोई सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती है या कोई प्रॉब्लम जो है यूनिक होती है, डिफ़िकल्ट होती है, तो इन दिस केस जो एक्सटेंशन वर्कर होता है, एक्सटेंशन वर्कर कॉल्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और फिर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं दे विजिट और दे कम्युनिकेट द रूरल पीपल, और इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के माध्यम से ही लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाती हैं, राइट। और इसके दो फायदे हैं, राइट। जो ट्रेंड एक्सपर्ट हैं उनकी जो भी ट्रेंड एक्सपर्ट्स की जो भी ट्रेनिंग है उस पर रूरल्स क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और साथ ही साथ जो ट्रेंड एक्सपर्ट हैं वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, राइट, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और विलेजर्स कैन गेट ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग बाय विजिटिंग द डेजिग्नेटेड रिसर्च सेंटर, फॉर एन एग्जाम्पल कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र में द रूरल फार्मर कैन लर्न जो एग्रीकल्चरल मेथड हैं, राइट, वो सीख सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है या काउंसलिंग ले सकते हैं। और जो ट्रेंड एक्सपर्ट की जो भी ट्रेनिंग होती है, काउंसलिंग होती है, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। देन हो जाएगा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। सी हर एक गांव में, या वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन रूरल एरियाज, बट irony is that
people don't know or don't aware about the resources which are found in rural areas, और वो उन resources को प्रयोग नहीं कर पाते। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से माध्यम से लोगों को ट्रेन किया जाता है, अवेयर किया जाता है, ताकि वो उन नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सके। इसके साथ ही जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो उस एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, समझता है, राइट, और उसके बाद में जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्रिएट करता है। उसके बाद में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका यूज़ करते हुए जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, नीड को फुलफिल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जो है फोकस किया जाता है, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनके लिए भी ये रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हो सके, राइट। तो जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, राइट, लोगों को अवेयर करता है, राइट, और साथ ही साथ उनको न्यू टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग के माध्यम से उनको कैपेबल बनाता है, ताकि वे अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को रिजर्व कर सकते हैं, राइट। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स, राइट, these were the principles of extension education, right. Now we will see development of extension education in India, and this may be asked as a 5-marker question, how the extension education developed in India, right. तो एक्सटेंशन एजुकेशन का इंडिया में डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उसको हम पूरी तरीके से समझेंगे, राइट। सो एक्सटेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन फर्स्ट फेज, देन सेकेंड फेज, आफ्टर दैट देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स, फॉर एन एग्जाम्पल इटावा पायलट प्रोजेक्ट, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, राइट, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एंड यू मस्ट रिमेंबर, हम इन प्रोग्राम्स के बारे में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी जो है पढ़ चुके हैं, राइट। तो एक तरीके से हम देखें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पूरी कम्युनिटी के लिए या जो रूरल कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था, और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, राइट। तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया इन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फेज हो जाएगा, राइट। तो अगर हम देखें तो बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट, बिफोर इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1988, राइट, सॉरी 1888। सो एक्सटेंशन एजुकेशन in India started in 1888, right, through, right, or we can say that when the British government introduced Reform and Agricultural Credit Act in 1888. So extension education started in India in 1888 when British government introduced Reform and Agricultural Credit Act. उसके बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, राइट, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें रूरल डेवलपमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिस्ट में, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट लिस्ट था या हम कह सकते हैं कि जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, राइट, उसमें इंक्लूड किया गया था। तो जाहिर सी बात है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट व रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल डेवलपमेंट, और इस तरीके से रूरल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया था ताकि रूरल डेवलपमेंट आसानी से हो पाए, राइट। इसके साथ ही उसके बाद में अगर हम देखें तो हर एक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें रूरल डेवलपमेंट क्या है, डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश किया गया। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये इनका जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो ड्यूटी होती है वो रूरल डेवलपमेंट ही होती है। सो दीज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ सेकेंड फेज, सी
जो सेकेंड फेज है वो 1908 में शुरुआत हुआ था, एंड जो सेकेंड फेज है, राइट, सेकेंड फेज वाज स्टार्टेड इन 1908 बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर ने विलेज डेवलपमेंट स्कीम को क्या किया था, लॉन्च किया था। सो रविंद्रनाथ टैगोर हैज लॉन्च्ड विलेज डेवलपमेंट स्कीम इन 1908 and under this scheme a rural reconstruction institute was established at शांति निकेतन in 1921। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट was established at शांति निकेतन in 1921। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलप एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्री, राइट, और एजुकेशन इन रूरल एरियाज। तो एजुकेशन को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स है, राइट, उसको इम्प्रूव करना, इंडस्ट्रीज को जो है इम्प्रूव करना, राइट। तो वहीं अगर हम देखें तो जो सेकेंड फेज है उसको सक्सेस दिलाने में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, एफ एल ए ब्राइन का है, राइट। सो द सेकेंड फेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन गोज टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुड़गांव, राइट। तो इसका जो क्रेडिट है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ जो गुड़गांव थे एफ एल ए ब्राइन, इनको जाता है। और एफ एल ए ब्राइन ने ही रूरल रिकंस्ट्रक्शन को पंजाब में क्या किया था, इनिशिएट किया था, एंड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू विलेज अपलिफ्टमेंट जो है उनको एक्टिवेट किया गया था। और साथ ही साथ जो विलेज डेवलपमेंट के लिए कई पॉलिसीज़ को भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, राइट, पूना की, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इन्होंने भी रूरल डेवलपमेंट के लिए और एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए जो है कार्य किया था, राइट। नाउ वी विल सी द इटावा प्रोजेक्ट। सी, Etawah project was started after independence in 1948 in Uttar Pradesh. So this pilot project started in 1948 in Etawah in Uttar Pradesh, and this program was conceived by American architect Lieutenant Albert क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा, राइट। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, एजुकेट द रूरल पीपल एंड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज टू इंट्रोड्यूस रूरल रिकंस्ट्रक्शन। तो गांव के लोगों को एजुकेट करो और साथ ही साथ रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए न्यू आइडियाज को क्या करो, इंट्रोड्यूस करो, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है इम्प्रूव करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें लर्निंग बाय डूइंग, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड थी उसको जो है फॉलो किया गया था। तो रूरल एरियाज में, राइट, जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट था इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को जो है फॉलो किया गया था, साथ ही साथ लोगों को एजुकेट किया जा रहा था, और एग्रीकल्चरल जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है इसमें दिया जाता था, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो जाएगा। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन 1960, राइट। और जो एग्रीकल्चर में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको अच्छे से असेस किया गया, स्टडी किया गया, और उसके बाद में इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था, राइट। दिस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट डिस्पेस्ड बाय द फोर्ड फाउंडेशन, राइट। और इस प्रोग्राम के लॉन्च में जो है फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, और जो फोर्ड फाउंडेशन था उसने इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए जो है यहाँ पर सजेस्ट किया था। सो फोर्ड फाउंडेशन सजेस्टेड वेज टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री, राइट। और इसके लिए अ पैकेज ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे हो जाएगा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो जाएगा, इरिगेशन इनोवेटर्स हो जाएंगे, प्लांट प्रोटेक्शन हो जाएगा, इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, क्रेडिट, राइट, वाज प्रपोज्ड थ्रू पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स और पंचायत के माध्यम से ये उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। देन हो जाएगा नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, राइट। तो जो नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट था ये स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए था। सो नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट वाज
डन फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल ऑफ क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन 1947 जो पाकिस्तान था वो बाइफरकेट हुआ था और वहाँ के जो हिंदू पीपल थे वो कहाँ पर आए थे, इंडिया आए थे, राइट। वो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो है नीलूखेरी एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था, राइट। और जितने भी लोग पाकिस्तान से आए थे, राइट, वो 100 जो है विलेजेस में उनको जो है बसाया गया था, राइट। तो जितने भी पीपल केम फ्रॉम पाकिस्तान उनको 100 विलेजेस में जो है बसाया गया था। और 1948 में उन लोगों के लिए वोकेशनल जो है ट्रेनिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो लोग थे ये द पीपल लेफ्ट देयर प्रॉपर्टी और असेट्स इन पाकिस्तान और वो भारत आए थे, तो इस वजह से उनके पास में जो है उतनी संपत्तियां नहीं थी, साथ ही साथ उनके पास में एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं था। तो उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए 1948 में वोकेशनल ट्रेनिंग जो है सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन कुरुक्षेत्र, ताकि उन लोगों को जो है एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से सेल्फ क्वालिफाइड बनाया जाए और वो एक तरीके से कोई किसी भी एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाएँ। देन हो जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, राइट। और हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए 1951 में जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। उसके बाद में हमारे देश में रूरल एरियाज़ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, right, through development agriculture, health, education, animal husbandry and cottage industry, right. Now at last we will see the importance and utility of extension education, right. So utility and importance, right. So utility and importance of extension education, and this may be asked as a 5 marker question, क्लियर। और यदि ये 11 मार्कर क्वेश्चन में आता है, सो वी हैव स्टडीड द की फीचर्स, राइट, की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो की फीचर्स, एक्सटेंशन की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स तथा यूटिलिटी के आधार पर अगर हम उत्तर लिखेंगे तो हम इसको 200 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, राइट। तो जो भी हमने पढ़ा है वो उसको हम समराइज भी कर सकते हैं और थ्रू इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी वी कैन समराइज द एक्सटेंशन एजुकेशन टॉपिक एज वेल। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की यूटिलिटी क्या है, सबसे पहला हो जाएगा फॉर बेटर और फॉर रेजिंग द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दोज हु डिडंट गेट फॉर्मल एजुकेशन एंड दोज हु आर अनेबल टू सॉल्व देयर डोमेस्टिक प्रॉब्लम, राइट, या वो जो भी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, राइट, चूंकि they don't have knowledge, right, they don't have knowledge, education facilities, training facilities, इसीलिए ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसके माध्यम से एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और साथ ही साथ जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके। सो फॉर बेटर और फॉर रेजिंग द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है एक्सटेंशन एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, efficiency in marketing, distribution, storage in agricultural production। अब देखिए अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूटिलाइज करने के लिए अगर मार्केटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की और स्टोरेज की अगर हम ट्रेनिंग दें तो उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अच्छे से स्टोर किया जा सकता है, अच्छे से बेचा जा सकता है, साथ ही साथ है जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको बेटर उसका यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द बेटर एफिशिएंसी एंड लोअर वेस्टेजेस। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज यूज्ड देन डेफिनेटली उससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और जो एग्रीकल्चरल वेस्टेजेस है वो कम होगा। देन ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल एरियाज, राइट, तो रूरल वेलफेयर के लिए ट्रेनिंग और रिसर्च परफॉर्म हो जाएगी। देन फॉर्मुलेट एडवांस रूरल पॉलिसी एंड
टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो जो रूरल पॉपुलेशन है उसके लिए एक एडवांस जो है पॉलिसी हम एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, और एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से रूरल एरियाज का ऑल राउंड या ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। देन जो जितनी भी एक्सटेंसिव सर्विसेज हैं उनका प्रोग्राम प्लानिंग और उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। और डेवलपमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, रूरल पोटेंशियल। तो एक्सटेंशन एजुकेशन सर्विस, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उससे लोगों की नीड और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ जो लीडरशिप पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ किया जाता है, और इस लीडरशिप पोटेंशियल इंक्रीज़ होने से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनमें भी बेहतर जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ जनरेट होंगी, और इससे ओवरऑल क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, राइट। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, importance and utility, right? Now we have finished this lecture, and in next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.